हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Children, I had already explained you about the changes in the school that day. So let's continue. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." Now, children, first you have to underline the lines from "the order has come from Berlin" till the last French lesson. Again, this is a very important line of this chapter. Now, if you remember that he had seen certain changes, the author had seen certain changes in the classroom, that they were, the old people were sitting, the class was very quiet, remember? And even old Hauser was sitting with the primer of French language. So while he was wondering, the author was wondering about it, suddenly he saw that M. Hamill mounted his chair. Now the meaning of mounted is seated. He went and he sat on his chair. And in the same grave is again what? Very serious tone and very kind tone, which he had used to welcome the author. Same tone he used, and he said, "My children, this is the last lesson." That means he wanted to convey to the children. वो बच्चों को बताना चाहता था कि उस दिन जो वो पढ़ा रहा है टीचर, that was the last lesson of their own language. वो उनका last lesson था, उनकी अपनी French language का. Now what was the reason why he said that that was the last lesson? ऐसा उसने क्यों बोला कि वो last lesson था उस दिन का? Main, yes. If you remember, there was a war between France and Prussia. Which country was defeated? France was defeated. So he told the children in the class that the order has come from Berlin. Now the main reason why he said that that was the last day, वो last lesson था French language का, क्योंकि एक order आया था बर्लिन से कि only कौन सी language सिर्फ पढ़ानी है? German language in the schools of जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे फ्रांस के, कौन से? अल्जास एंड लोरेन. उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ानी है. कौन सी लैंग्वेज नहीं स्टार्ट होगी अब? जर्मन. दैट मीन्स नाउ द पीपल ऑफ फ्रांस, अल्जास एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट, दे वर फोर्स्ड to study only which language? German language. Like for example, we are Indians, right? And we were what? Ruled by the Britishers. हमें कौन रूल कर रहे थे? ब्रिटिशर्स. और अगर ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे बट उन्होंने हमसे हमारी लैंग्वेज तो नहीं ली, नेटिव लैंग्वेज व्हाट? हिंदी. यस. बट यहाँ पे जो प्रशियंस थे उन्होंने फोर्स किया कि नहीं, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. कहाँ पे? अल्जास एंड लोरेन के स्कूल्स में. The new master comes tomorrow, and he said, because जो टीचर थे एम हैमिल, वो क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच लैंग्वेज. और उन्होंने कहा कि जो नए मास्टर हैं वो कब आ रहे हैं? नेक्स्ट डे आ रहे, टुमारो. तो टीचर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया बच्चों को कि उस दिन वो उनकी अपनी ओन लैंग्वेज का लास्ट लेसन था. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. सो ही वॉन्टेड ऑल द चिल्ड्रन टू बी वेरी वेरी attentive. Please write down on the side important lines of the chapter. Now remember, if you remember that the war between France and Prussia and all the changes, and there was a huge crowd outside the bulletin board. Remember when the author was in a hurry to reach school, एक बहुत भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के, बट उसके पास टाइम नहीं था रुक के देखने के लिए कि क्यों भीड़ है. यही ऑर्डर जो बर्लिन से ऑर्डर आया था, यही बुलेटिन बोर्ड पे लिखा था और वही ऑर्डर उसे स्कूल में आके पता चला. Now, जैसे ही टीचर्स ने ये वर्ड बोले, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज देयर. What a thunderclap these words were to me. Please mark as an important question. What a thunderclap. Thunderclap means sudden and jolting. Please write down sudden and jolting. Right? Now you have to circle this word, thunderclap, because it is again an important keyword for the exams. Right? नाउ टीचर के जो वर्ड्स थे या ये ऑर्डर जो टीचर ने बताया, ये उसके लिए एक शॉक की तरह था. थंडर क्लैप, थंडर क्लैप, एक सडन एंड जोल्टिंग, एक उसको शॉक मिला.
Why? Now again the question was कि टीचर के कौन से वर्ड्स जो थे वो ऑथर को एक थंडर क्लैप की तरह लगे थे. Again I'm repeating the question. Which words of the teacher appear to be like a thunder clap for the author? Right, children? This is an important again question. Please write down Q there. Students, the question, what a thunderclap, right? थंडरक्लैप अगेन कौन से वर्ड्स टीचर के ऑथर को थंडरक्लैप लगे, इसका आंसर हमारा वही है. कौन सा वाला? द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. These words were like thunderclap. Now if you remember in the previous page there was a question I made you mark. We were beginning without you, right? You can easily turn the page and see on page number 3 there was a line I made you mark. एक line mark कराई थी that we were beginning without you. हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे. And I told you that I will be explaining. So the answer of that question also कि हम टीचर ने ऐसा क्यों कहा था कि हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू कर रहे थे, बिकॉज क्योंकि उस दिन ऑर्डर आया था बर्लिन से एंड टीचर चाहता था कि सब स्टूडेंट्स उस लास्ट क्लास को क्या करें, अटेंड करें. कौन सी लैंग्वेज की? फ्रेंच लैंग्वेज की. Okay, what a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches. Now here, wretches means evil persons. Evil persons. Please write down evil persons. Refer to Prussians. Now suddenly, उसके mind में क्या आया? Oh, those evil persons. That was that they had put on the town hall. तो उसको लगा, अब समझ में आया कि ये वो Prussians, ये evil persons ने ये ही order वहां लिखा था टाउन हॉल के, जो बाहर क्या लगा हुआ था? बुलेटिन बोर्ड लगा था. My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. Now he was feeling very sad. The author was feeling sad. Suddenly ये शॉक था उसके लिए कि आज लास्ट डे है उनके अपनी ओन लैंग्वेज का. कल से वो नहीं पढ़ेंगे, जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे. तो नाउ ही इज थिंकिंग, थॉट्स आर देयर इन हिज माइंड कि मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच का. व्हाई? I hardly knew how to write. Now he's feeling very sad क्योंकि उसको लिखना भी नहीं आता था, उसने प्रॉपरली लर्न भी नहीं किया था प्रॉपर अपनी पूरी लैंग्वेज को, बिकॉज ही नेवर गेव इंपॉर्टेंस टू व्हाट? लर्निंग. पढ़ाई को उसने कभी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. अगेन ही वॉज फीलिंग सैड कि लास्ट लेसन है आज फ्रेंच लैंग्वेज का, अब मैं और नहीं लर्न करूंगा. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. सो ही सेइंग आज लास्ट है, स्टॉप करना है, कल से न्यू लैंग्वेज सीखनी है. सो सडनली हिज फीलिंग्स चेंज्ड. उसकी एकदम से फीलिंग्स चेंज हुई. Please mark from here sorry, starting from sorry. So how sorry I was for not learning my lessons. Please mark, this is that he was feeling very sorry, he was regretting. वो sorry feel कर रहा था, वो regret कर रहा था कि उसने अपने lessons learn नहीं किए. आज last day हो गया फ्रेंच लैंग्वेज का, उसे अपनी लैंग्वेज लिखनी भी नहीं आती थी प्रॉपरली, तो अब वो क्या फील कर रहा था? सॉरी फील कर रहा था. तो इस पैराग्राफ में सडनली जब उसको ऑर्डर का पता चला बर्लिन के, उसके थॉट्स चेंज हो गए. किसके लिए? टुवर्ड्स स्टडीज, टुवर्ड्स टीचर्स. तो ये पैराग्राफ बताता है कि सडनली ऑर्डर आने के बाद ऑथर के थॉट्स कैसे टीचर के लिए और कैसे स्टडीज के लिए जो है वो सडनली क्या हुए? चेंज हो गए. तो पहला थॉट क्या उसके अंदर चेंज आया कि वो सॉरी फील कर रहा था कि वो अपने लेसन्स लर्न नहीं कर पाया. बट सीकिंग फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स or going to the SAR, right? Please, or going sliding on the SAR. Please mark this again. This is an important line again. Yes. Now he says instead of learning his lessons, what he did, he had wasted time. Wasted time where he used to go, right? And used to seek what? Birds' eggs. Birds के eggs निकाल आता था nest में से. जब पढ़ना होता था तो वो टाइम वेस्ट करता, और सार एक प्लेस थी वहां जाके वो स्लाइड करता था. तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग हिज लेसन्स ही यूज्ड टू वेस्ट हिज टाइम लाइक दिस. तो वो सॉरी फील कर रहा था कि जब मेरे पढ़ने का टाइम था इस टाइप से सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, ऐसे उसने अपना टाइम वेस्ट किया. नेक्स्ट मार्क करिए बुक्स को सर्कल. ये तो चेंज टूवर्ड्स व्हाट? स्टडीज क्या है सारा, राइट? बुक्स दैट हैड सीम सच ए न्यूसेंस. तो ये सारा चेंज उसका स्टडीज के लिए एकदम से आ गया, लर्निंग के लिए. तो वो सोच रहा है कि जो बुक्स अभी थोड़ी देर पहले, अ व्हाइल अगो, राइट, सीम सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, राइट? न्यूसेंस प्लीज माँ. तो अभी थोड़ी देर पहले क्या जो बुक्स उसको इतनी, न्यूसेंस मीन्स ट्रबलसम, जो बुक्स उसको इतनी ट्रबलसम, परेशान करने वाली लग रही थी, अब वो बुक्स कौन सी बुक्स हैं?
nuisance so heavy to carry. My grammar, my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. Right? Please mark from till here first कि ये changes उसके अंदर आए. किसके लिए? उसकी स्टडीज के लिए, उसकी लर्निंग के लिए, स्कूल के लिए. क्या चेंजेस थे? नाउ ही स्टार्टेड फीलिंग व्हाट? सॉरी. वो रिग्रेट कर रहा था कि जो लेसन्स जब उसको लर्न करने चाहिए थे उस टाइम पे वो बर्ड के एग सीख करता था जाके, और वो स्लाइडिंग करता था सार पे जाके, या जो बुक्स उसको अभी थोड़ी देर पहले उसको एक न्यूसेंस लग रही थी, ट्रबलसम लग रही थी, या बहुत हैवी लग रही थी कैरी करने में. कौन सी बुक्स? ग्रामर की, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स. अब उसे लग रहा था कि वो उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हैं जिनसे वो अलग नहीं होना चाह रहा है. मीन्स थोड़ी देर पहले बुक्स वर फॉर व्हाट बुक्स वर फॉर हिम, दे वर लाइक ट्रबलसम फॉर हिम. बट जैसे ही उसको ऑर्डर का पता चला, सडनली ही ग्रू व्हाट काइंड ऑफ अफेक्शन फॉर दोज बुक्स. उसे लग रहा था वो बुक्स उसकी क्या है? फ्रेंड्स एंड ही वॉज नॉट रेडी टू पार्ट दोज बुक्स. Now coming, please mark M. Hamill. M. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made him forget all about his ruler and how cranky he was. Now mark the meaning of cranky, bad tempered. Again I'm repeating, cranky means bad tempered. Now it says टीचर के लिए भी उसकी फीलिंग्स चेंज हुई. ये आइडिया सोच के कि टीचर चले जाएंगे, मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखूंगा, तो सडनली वो भूल गया कि कितने स्ट्रिक्ट टीचर थे, कितना रूलर वो यूज करते थे, मारते थे, और कितने वो बैड टेम्परामेंट के टीचर थे. वाई? बिकॉज स्टिल कितने भी स्ट्रिक्ट टीचर थे, ही वॉज टीचिंग समथिंग गुड टू देम चिल्ड्रन. सो एक लव एंड अफेक्शन कहीं किसी कॉर्नर में था. सो ही वॉज नॉट अगेन रेडी टू लीव द टीचर ऑल्सो. सो ही वॉज व्हाट चेंजेस केम? ही वॉज नॉट रेडी टू लीव द बुक्स ऑल्सो. He was not ready to leave the teacher. So children, please, anywhere on the left hand side or the right hand side, write down changes in the author, or Franz you can write after the order. Again, I am repeating, again this is a question, changes in Franz after the order. Right? Okay. This, I hope this much is clear to all of you. Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Please mark here and write down why there were changes in teacher. Here we are talking about teacher. Now he understood. अब उसे समझ में आया कि टीचर ने वो इतने फाइन संडे क्लोथ्स क्यों पहने थे. बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव ऑनर. वॉट ऑनर? इन ऑनर ऑफ हिज वॉट? द लास्ट लेसन. विच लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज के लास्ट लेसन के ऑनर में टीचर ने इतने बढ़िया क्लोथ्स पहने हुए थे. एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. Please mark all these lines, they are very important. You can see there is an important question. आप देख सकते हैं एक important question है starting में ही. Why the old men of the village were sitting there in the back of the room? This is an important question. Please write down Q here. Answer starts from there only. It was because, यहां से आंसर स्टार्ट होता है. It was because they were sorry. अब विलेज के लोग क्यों बैठे हुए थे क्लास में? I remember in the classroom the old people were sitting. Old horse, former postmaster, former mayor, ये सब बैठे हुए थे. तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि why the old men of the village were sitting there. वो लोग क्यों बैठे हुए थे रूम में? आंसर बिकॉज दे वर सॉरी. सो फर्स्ट पॉइंट इज क्योंकि वो भी सॉरी थे. सॉरी किस चीज के लिए थे? दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो लोग स्कूल नहीं गए थे. दे हैड नॉट गिवन इंपॉर्टेंस टू लर्निंग. इट वॉज द वे ऑफ द थैंकिंग अ मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. और फिर पॉइंट नंबर 2 है, ये उनका वे था उस मास्टर को थैंक करने के लिए. कितने ईयर्स की सर्विस के लिए? 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. Number 3 point, and of showing their respect for the country that was theirs no more. और वो उस कंट्री को रिस्पेक्ट शो कर रहे थे जो अब उनकी नहीं रही थी. कौन सी कंट्री को? फ्रांस को. राइट? सो दीज आर द 3 reasons why those people were sitting. ये 3 reasons है why old people were sitting in the classroom, back benches पे जो बैठे हुए थे. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite.
What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there holding up onto my desk, my heart beating and not daring to look up. Now, if you remember, the teacher had given them some work. Yes, the teacher was supposed to ask them questions on participles. Teacher को उस दिन किसके ऊपर questions पूछने थे? Grammar के topic, participles. अब वो ये जब सोच रहा था तभी उसका नेम कॉल आउट हुआ. उसकी टर्न थी क्या रिसाइट करने की? पार्टिसिपल के रूल्स. नाउ ही वाज स्टैंडिंग एंड थिंकिंग. वो खड़े होकर सोच रहा था कि अगर उसके रूल्स वेरी क्लियर और लाउड नहीं सुना पाया तो क्या होगा. And he was very much aware कि बिना मिस्टेक की अगर वो रूल नहीं सुना पाया, he's got to get a good scolding from teacher, कि उस दिन उसे बहुत अच्छी स्कोल्डिंग मिलने वाली है. बट जैसे ही उसने स्टार्ट किया he got mixed up. लेकिन जैसे उसने रूल्स बनाने स्टार्ट किए he got mixed up because उसको आते ही नहीं थे. And he was holding on to my desk. Now he was so terrified, he was so scared. He knew that teacher से डांट पड़ेगी. So what he did is he stood there with his eyes, looking down, staring the ground, not daring to even look up. डर के मारे उसकी आईज नीचे थी, ग्राउंड पे देख रहा था, फ्लोर पे, और आईज लिफ्ट भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो स्कैर्ड टू फेस द टीचर. टीचर को फेस करने में भी डर लग रहा था बिकॉज ही वॉज वेटिंग कि उसे क्या होगा, डांट पड़ेगी अभी. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, "Bah, I've plenty of time. I'll learn it tomorrow." Now teacher, he was thinking that teacher is going to scold him badly. But no, ऐसा नहीं हुआ. टीचर ने क्या कहा? बहुत पोलाइटली टीचर ने कहा कि आज मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा. टीचर said that he is not going to scold, कि मैं आज स्कोल्ड नहीं करूंगा. फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम्हें आज क्या होगा, बुरा लगेगा. See how it is every day we have said to ourselves. तो टीचर ने कहा देखो, रोज हम अपने आप को क्या कहते हैं, oh, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow. Right? Same as with you children also. कल पढ़ लेंगे, अभी बहुत टाइम है, कल पढ़ लेंगे. तो same thing teacher said, see, every day तुम अपने आप को क्या बोलते हो, अरे बहुत plenty of time है, we'll learn it tomorrow. सब tomorrow पे छोड़ते हैं, we'll learn it tomorrow. Means learning को तुमने कभी भी importance नहीं दी, हमेशा उसको क्या किया, नेक्स्ट डे पे छोड़ा. राइट, एंड नाउ यू सी वेयर वी कम फ्रॉम. तो टीचर ने कहा देखा, ये टुमारो के जो नेक्स्ट डे के लिए तुमने लर्निंग को छोड़ा, लर्निंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो सी हम लोग जस्ट सी कि कहाँ आ गए. दैट मीन्स कि अपनी लैंग्वेज हमें क्या करनी है, छोड़नी है. And that's the great trouble with Ilzaz. She puts off learning till tomorrow. Now this is an important question, children. Please mark. The great trouble with Ilzaz means the teacher said कि यही सबसे बड़ी trouble है Ilzaz के people के साथ. He's not talking about the district. She refers to the people of Ilzaz. यहाँ she Ilzaz के लिए बोला है. Personification. Figure of speech क्या है? Personification. I hope you know personification क्या होता है. Yes, कोई नॉन लिविंग थिंग को जब हम पर्सन की तरह प्रेजेंट करते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन. सो टीचर ने कहा दैट्स द ग्रेट ट्रबल, कि यही सबसे बड़ी ट्रबल है अल्जाज के लोगों के साथ. हर चीज वो स्पेशली क्या, लर्निंग को वो क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं. दे डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू लर्निंग, कि लर्निंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो उसको कल पे छोड़ते हैं. दे लीव इट फॉर टुमारो. दैट मीन्स कि कल कर लेंगे. उनके लिए लर्निंग, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है, अर्न करना. They send their children to farms and mills to earn. Learning के लिए कोई भी, पढ़ने के लिए कोई भी बच्चों को नहीं सेंड करता है. पढ़ाई उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो देखो, उन्होंने समझाया कि देखो, हर चीज हम टुमारो पे छोड़ते हैं या नेक्स्ट डे के लिए करते हैं. लर्निंग को पोस्टपोन किया और क्या हुआ, आज हमारी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज हमसे छीन ली गई है. That's the great trouble with Ilzaz. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows, यहाँ those fellows किसको रेफर किया, Prussians को. Out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. This is, अब तुमने उन फेलोज को, प्रशियंस को पूरा राइट दे दिया है तुम्हें ये कहने के लिए, और टू मेक फन ऑफ यू, अपना फन बनाने के लिए तुमने उनको राइट दिया है. वो तुमसे कह सकते हैं, अरे यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम प्रिटेंड करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, तुम्हें ना तो बोलनी आती है अपनी लैंग्वेज और ना ही प्रॉपरली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो. दैट मीन्स यू हैव गिवन the right to the Prussians to make fun of you.
But you are not the worst, poor little friends. We all a great deal to reproach ourselves with. Please mark, this is again an important question. The last line, it's again, right? Now the teacher says you are not the one to blame. कि सिर्फ तुम ही नहीं हो इस चीज के लिए ब्लेम करने के लिए. अगर तुम आज पढ़ना नहीं सीखे हो या लर्निंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी है तो यू आर नॉट द ओनली वन. सिर्फ तुम ही नहीं हो इस चीज को ब्लेम करने के लिए. वी ऑल ग्रेट, हम सब हैं इसके लिए. डील टू रिप्रोच मतलब आज तुम पढ़ाई नहीं करना की तुमने करी या फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आई तो हम सब राइट. डील टू रिप्रोच, रिप्रोच मीन हम सब अपने आप को क्रिटिसाइज या ब्लेम करते हैं. प्लीज राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिप्रोच. रिप्रोच मीन्स हियर वर्ड ब्लेम, कि हम सब अपने आप को क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीचर यहाँ किस को रिप्रोच कर रहा है या किस को ब्लेम करता है. दैट फॉर नॉट लर्निंग व्हाट, दैट मीन्स दिस द ऑथर हैड नॉट लर्न्ड हिज लेसन्स. टीचर ने किस को रिप्रोच किया. अगेन दिस इज लाइन इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लाइन. प्लीज मार्क इट important, very important question line. Answer I will teach you further when we continue the chapter. Teacher is blaming who all? Yes, the answer is question. I hope you mark great deal to reproach. These are the key lines. The answer starts from here. Number 1, parents. सर्कल नंबर 1 पेरेंट्स. सो फर्स्ट टीचर किसको ब्लेम कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है कि उसने लर्न नहीं किया या पढ़ाई नहीं की? फर्स्ट पेरेंट्स को. अंडरलाइन वाई, ये तो किसको है, whom he is blaming and why, और क्यों ब्लेम कर रहा है पेरेंट्स को? अंडरलाइन द आंसर, they were not anxious enough to have you learn, क्योंकि पेरेंट्स बिल्कुल भी वरिड नहीं थे कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए. They preferred to put you to work on a farm or at the mills. पेरेंट्स ने क्या प्रेफर किया कि जो ऑथर है वो या तो क्या करे, फार्म पे जाके वर्क करे या मिल पे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, सो दैट कि वो और मनी अर्न कर सकते हैं, घर में और मनी आएगा. तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि कौन कौन ब्लेम करने के लिए रिप्रोच कर रहे हैं. नंबर 1 पेरेंट्स को बिल्कुल भी एंक्शियस नहीं थे कि वो ऑथर को स्कूल भेजे पढ़ने के लिए, बट क्या प्रेफर किया, उसको फार्म पे या मिल्स पे, सो दैट अ लिटिल मोर मनी इज अर्न. एंड आई सर्कल करके यहां लिखिए टीचर एम हैमिल अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं कि अगर आज वो पढ़ाई नहीं कर पाया या उसे नहीं आती फ्रेंच लैंग्वेज तो रीजन और वो टीचर भी है रिस्पॉन्सिबल उसके लिए. नाउ व्हाई, टीचर क्यों है रिस्पॉन्सिबल? आंसर करिए. नंबर 1 पेरेंट्स थे, नंबर 2 एम हैमिल है, टीचर रिस्पॉन्सिबल है. आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. Have I not often sent you to water my flowers? तो फर्स्ट रीजन टीचर क्यों ब्लेम कर रहा है अपने आप को, sent you to water flowers instead of learning lessons. मतलब जब टीचर को उनके लेसन्स बच्चों को लर्न कराने चाहिए थे उस टाइम टीचर अपने गार्डन में फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भेज देते. दैट मीन्स कि टीचर ने भी बच्चों का टाइम वेस्ट किया. नंबर 1 टीचर का पॉइंट, राइट. नंबर 2 when I wanted to go fishing, did I just not give you a holiday? Please mark fishing gave holiday. दिस इज टीचर का सेकेंड पॉइंट है ये कि टीचर जब भी टीचर को फिशिंग के लिए जाना होता था टीचर स्टूडेंट्स को क्या कर देता, हॉलीडे राइट दे देता था. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल. फर्स्ट रिप्रोच, टीचर किस किस को रिप्रोच कर रहा है? नंबर 1 टीचर इज रिप्रोचिंग whom? टीचर इज रिप्रोचिंग द पेरेंट्स. क्यों? बिल्कुल भी एंक्शियस नहीं थे, प्रेफर क्या किया, फार्म या मिल्स पे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. सेकेंड एम हैमिल अपने को ब्लेम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ही इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चिल्ड्रन टू लर्न देयर लेसन्स वो क्या करते थे, अपने गार्डन में फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भेज देते, और जब भी उन्हें फिशिंग के लिए जाना होता था वो क्या कर देते, हॉलीडे दे देते. तो ही ऑल्सो वेस्टेड टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स. चिल्ड्रन, these are some important questions based on the paragraphs taught in this video. Students, for more videos, kindly subscribe and press the bell icon. Thank you.